अगर हमने टेबल साथ में लिया है, दिस इज एन एक्सपेंसिव टेबल, इट इज, इसको थोड़ी ना काट के आधा आधा कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर कुत्ता लिया तो कुत्ते को थोड़ी ना काट के, आई मीन अनलेस चाइना में हो तुम मैंने तो एक बार रिंग फेंक के भी उसके मुंह पे ब्रेकअप किया था। उसने मुझे एक सिल्वर रिंग दी थी, रियल सिल्वर, रियल डू यू स्टिल सिल्वर, हैव इट? थ्रू इट। A very good time to break up is as soon as you feel like he's your brother. कि तुम्हें राखी पहनाने का मन कर रहा है, break up when he's drunk. तो उसको याद नहीं रहेगा ना फिर। हाँ, उसकी प्रॉब्लम है ना, तुमने तो कर लिया, तुम्हारे पे कोई चीट नहीं करेगा। You're like this North Indian man. मैंने भी किसी पे चीट नहीं किया, I'm scared of you. I would never cheat on you. मेरी फ्रेंड ने ना अपने बॉयफ्रेंड को एक लैपटॉप गिफ्ट किया था, ठीक है, EMI पे, लेकिन फिर हो गया उनका ब्रेकअप। पर EMI किसके नाम पे था और लैपटॉप किसके पास है? Shit यार, ये पता है ना, ये पता है ना किसके साथ हुआ है? What? Welcome to Two Girls and Two Cans. This coffee is very good. क्या आपने भी ब्रेकअप के बाद दिल पे पत्थर रख के मुंह पे बोटॉक्स कर लिया? क्या आप भी पहले सुबह उठकर करंट अफेयर्स पढ़ते थे, लेकिन अब सुबह उठकर ये चेक करते हो कि आपकी एक्स के करंटली कितने अफेयर्स हैं? क्या मूव ऑन करना आपके लिए उतना ही मुश्किल है जितना सलोनी के लिए अपने पति को सॉरी बोलना है, या अपने घर को साफ करना है, या बस कुर्सी से उठ के कुछ तो करना है? मूव करो, एटलीस्ट मूव। एनीवे, यू नो, लोग प्यार के बटरफ्लाइज के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन ब्रेकअप के डायरिया के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज हम इस चैनल पर टू गर्ल्स टू कप्स में टू गर्ल्स आपको बताएंगी कि ब्रेकअप कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या फीलिंग्स होती है और क्या 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 एवरीथिंग। और हमारे बहुत ब्रेकअप्स हुए हैं, सो दैट एक्चुअली सेज अ लॉट अबाउट अस। सीधा पॉइंट पे आते हैं। तू बता, वर्स्ट ब्रेकअप स्टोरीज क्या हुआ भाई? चाट हमारा जॉय इज हर्टिंग। व्हाई? I'll tell you my first breakup. Your first breakup? मेरा first breakup जो मैंने किया था वो मेरे obviously first ही boyfriend के साथ होगा ना। I mean, जरूरी नहीं है। How can you break up with someone you're not with? You could be with 10 people and your first breakup could be with the 5th one. Interesting. I've lived. Anyway, tell me about your worst breakup. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, not worst, this is not my worst breakup. This is the worst breakup for the other person, क्योंकि मैंने उसको बेचारे को I'm really sorry. भूपेंद्र, पर मैंने तुम्हें sorry who? I've given him a dark name. It's a dark name. It's not a dark. So you were dating Bhupinder and then what happened? And he was, वो बहुत ही ज़्यादा clingy था। मतलब there is one thing to be in love with me and there is one thing to constantly say it as like full stop कि अच्छा तो तुम क्या कर रही हो, I love you. अच्छा खाना खाया, I love you. So it became too much for me और वो प्यार तो करता था पर कुछ ज़्यादा ही। तो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल काइंड चीज़ की, मैंने उसको ब्रेकअप किया मैंने उसके साथ फेसबुक पे। You sick person, you broke up with him on Facebook. मैं पढ़ूंगी। Hey Bhupinder, there's bad news. Very. My dad has come to know about us. I don't know how. He's really upset. Not because of you, but because he's got my report card. I've got a 60% yeah. That's not all what I expected. I've never got a percentage below 70%. And for me, 70% feels like, oh wow. My cell phone is no more going to be with me now. I'm grounded, Bhupinder. For the 200th time, there will be no way to contact you now. My dad has given me another chance, or I'll probably be sent to the hostel. I really want to study this time and show him what my capacity is, and it won't be possible if I continue dating you. I'm really sorry, Bhupinder, but I have to do what I'm doing. There won't be any way of communication anyway. So I have cut all communication. So it's really no use trying. You've got your 10th too. Serious year. You're not serious though. Stay in touch if possible. If you call, you'll probably have to face my dad, which is a bad idea. Landline is a bad idea because only my sis is permitted to answer the calls. Take care. I'll miss you. Don't reply back emotionally, please. I'll probably start crying, and I'm sure you don't want that to happen. Love you. Wow. So yeah, that's what I did, and I'm only saying this because इसीलिए लड़कियां बदनाम है guys. इसीलिए. ठीक है. I feel like ये कुछ भी करो, ये कभी मत करो. WhatsApp पे लोगों के साथ ब्रेकअप करना. Facebook तो अभी कोई यूज़ नहीं करता वैसे, पर WhatsApp, DMs पे
it's very I don't know what he must have gone through. पर फिर 3 महीने बाद मुझे पता चला वो मुझ पे चीट कर रहा था. तो फिर ठीक है ना, he deserved it, you deserved it, Bhupinder. But I didn't confirm it with him, so I still don't know. Oh my God, you're so weird, man. So that was the worst breakup for him. ये तो चलो हो गई बचपन की बातें. जैसे ही बड़े बड़े होते रहते हैं, बड़े बड़े ब्रेकअप्स और मुश्किल होते जाते हैं. एंड देन यू विश कि काश वही फीलिंग हो जो पहले होती थी जब हम ब्रेकअप करते थे, कि इतना इजी होता था ना. हाँ. इट वाज जस्ट यू हैड टू जस्ट से इट, ब्रेकअप. ऐसे नहीं, ऐसे पैच अप, ब्रेकअप. पैच अप. ब्रेकअप एंड पैच अप वाज द टर्म, राइट? मैंने तो एक बार रिंग फेंक के भी उसके मुंह पे ब्रेकअप किया था. उसने मुझे एक सिल्वर रिंग दी थी फ्रॉम सिलोफर. इफ यू गाइस आर फ्रॉम दिल्ली यू विल नो व्हाट सिलोफर इज. Yeah, Silofer is like, he looked up, he knows what Silofer is. Silofer was this place in GK जो बहुत famous थी. वहाँ expensive, उस time पे expensive silver rings मिलती थी. तो उसने मुझे ring गिफ्ट की. Real silver. Real. अभी तो सिल्वर का दाम बहुत बढ़ गया है. Real Do you silver. still have it? I threw it. Fucking. Srishti, when I hit you, I didn't really hurt you. It was for the camera. Sorry. You can't break my finger, man. You deserve it for throwing a ring on someone. I know हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है पैसे. सिल्वर नहीं वापस देना चाहिए था यार. तो तुम वायलेंट भी हो, मुझे नहीं तुम्हारे पता. पापा भी तुम्हें मारते हैं करने के लिए. तो मैंने रिंग फेंक के ब्रेकअप किया था. ये ले. मेरे एक ही बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बार ब्रेकअप हुए. ये तो हम करते ही थे कि ब्रेकअप, कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे, ब्रेकअप. हाँ. तुमने मेरा फोन मिस्ड कॉल देख के तुमने स्टोरी पे डाला अपना स्टोरी, लेकिन तुमने मुझे कॉल बैक नहीं किया, ब्रेकअप. So toxic. Yeah. So every time he would break up, I would give him something of his own back. Something that he gave me back. And then when we would patch up, he would give it back to me. I would be like, अब वापस दे. वो बेचारा वो जूते इतने मस्त वाले दिए थे तूने. वो जूते कह रहे क्या कर रहे हो, कहाँ रख रहे हो. और मैं बहुत स्मार्ट चीज करती थी. मैं ना उसको डायरेक्टली नहीं देती थी, उसके फ्रेंड के थ्रू उसको देती थी ना. उसके फ्रेंड को बोलती थी अभी मत दे, 2-3 दिन वेट कर. पर उसको मैंने बोल दिया मैंने वापस दे दिया है तुम्हारा. हाँ, जो भी तुमने मुझे दिया था ना, आई डोंट वांट योर गिफ्ट्स. एंड देन हमारा पैचअप हो जाता 2-3 दिन में. फिर वो दोस्त से ही वापस ले लेती थी. Wow. ताकि उससे डायरेक्टली ना देना पड़े, कॉन्फ्रंटेशन ना हो. But ये easy है ना when you are not staying together. What if when you are staying together? Breakups are far harder when you are Then staying it's like together. a marriage breaking. Honestly, when you're staying together for, now I'm not talking about 3-4 months ka live-in. That's not a fucking live-in relationship. हाँ. That's just rich people because they have a lot of money. They'll rent a house together. अगर तुम live-in relationship में जाते हो तो you'll do it for the long term. And Yeah. even if it's 1 year, अगर आप वहाँ से leaving from that situation is very tough. It's because if you have done a live-in means parents are involved. Not Your necessarily. families are kind of they know. Not necessarily. मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था मैं लिव इन में हूँ 1-1.5 साल तक. वो अगर लिव इन तब नहीं breakup- होता. तुम अपने हस्बैंड के पैसों पे जी रही थी. ये हस्बैंड नहीं था वो मेरा यार. बॉयफ्रेंड के पैसों पे जी रही थी तुम. ये क्या बात थी? तो वो वो लिव इन उसका नहीं. घर था जिसके घर में तुम रह रही थी. तो उस घर में मैं भी चीजें लेके आई थी. अगर ब्रेकअप होता तो कौन सी चीजें? जैसे कि अपने बेडशीट्स. कपड़े. bedsheets. Bedsheets. I made it a little girly. That's only because you didn't want to use the same bedsheet. That's so true. That is so true. Okay, fine. Parents are not involved, but it is serious. It is as good as getting married. But हाँ ठीक है. And you bring a lot of things into that house together. हाँ. तो अभी जब ब्रेकअप हो रहा है तो बंटवारा जब करना होता है. बंटवारा. It is a बंटवारा. Like ये अगर हमने टेबल साथ में लिया है, this is an expensive table. It is this one. इसको थोड़ी ना काट के आधा आधा कर सकते हैं. हाँ मतलब अगर कुत्ता लिया तो कुत्ते को थोड़ी ना काट के, I mean unless चाइना में हो तुम. My previous live-in relationship, I have gone back to get my skincare. I've gone back to get my scrub. Let me get this straight. तू वापस गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर पे to get your scrub. Why not? ऑनलाइन मंगवा देती यार. मैं क्यों मंगवाऊँ? एक सेकेंड. मेरा स्क्रब है, मेरे फेवरेट ब्रांड का स्क्रब है, ठीक है. इट्स एन एवरयूथ वॉलनट स्क्रब. ओके, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर इयर्स. ठीक है, वो भी यूज करता था, लेकिन मेरा स्क्रब है, मैं क्यों नया मंगवाऊँ? आई वेंट बैक एंड आई गॉट इट. मैं नया लेके आऊंगी. मैं क्यों लेके आऊंगी? काम डाउन. बट घर के भी तो नुस्खे होते हैं ना. मेरी दादी का नुस्खा है हल्दी और बेसन का पेस्ट. मेसी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. पहले ये पता करो कि बेसन कितना डालना है, फिर पता करो कि पानी कितना डालना है, हल्दी डालनी है स्वाद अनुसार या त्वचा अनुसार,
उसके बाद जो भी मेसीनेस हुई है उसको बैठ के साफ करो. एक तो ऑलरेडी ब्रेकअप्स आर सो मेसी, ऊपर से फिर देन आई हैव टू क्लीन अप आल्सो. नो थैंक यू वेरी मच. आई हैव वन प्रोडक्ट एवरयूथ का वॉलनट फेस स्क्रब एंड इट वर्क्स फॉर मी. वो एक्सफोलिएट करता है, ब्लैक हेड्स हटाता है, वाइट हेड्स हटाता है, डेड स्किन सेल्स हटाता है, स्किन स्मूथ करता है. स्किन देख मेरी कितनी स्मूथ है. टच इट. बहुत 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 स्मूथ है. But I have gone back and I've picked up my scrub because my scrub, I have my scrub. You want to see it? I carry it. It is, okay, 1 second. It is really good. I carry it. Wait, I'll get it. Ruk, मैं लेके. You're really getting. Ruk, I'll get it. What the hell? Wow, you really have it with you. I carry it everywhere. I carry it everywhere. Obviously वो वाला नहीं है जो मैंने उससे लिया था because obviously that was a long time ago. This is a new one. But it works. I'm not going to give it to you. This is mine. It has to be kept straight only. मेरी त्वचा का राज. It's true, bro. It's really good. If you and Bhavesh break up, God forbid you don't. God forbid you don't. Universe, listen to every good thing, not No, this. but if that happens, तो घर से बाहर कौन निकलेगा? When I think about कि what if वो thoughts तो आते हैं ना. I'm like fuck no. I have a dog with you. I have my entire life with you. Things have to go really wrong for me to move away from. Like I think अगर वो मुझ पे ऐवी चीट भी कर ले तो मैं बोलूँगी ठीक है यार मेरे को अपना टीवी चाहिए. ऐवी भावेश ऐसे गलती से जो हो जाता है यार मतलब you just fell on her. Should we tell She her? fell on you. Should we? Call me. Breakups during a live-in is very tough and I feel like what? I remember this. मेरी फ्रेंड ने ना अपने बॉयफ्रेंड को एक लैपटॉप गिफ्ट किया था, ठीक है, EMI पे. लेकिन फिर हो गया उनका ब्रेकअप. पर EMI किसके नाम पे था और लैपटॉप किसके पास है? Shit यार. ये पता है ना किसके साथ हुआ है? No. उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने I think she made him buy a property or something. Property? Yeah. He had That's just got what I his mean. big chunk of money. And they said कि देखो घर तो खरीदना ही है, कहीं आउटस्कर्ट्स में छोटा सा एक साइनिंग अमाउंट, नॉट साइनिंग अमाउंट, जो क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट होता है. उसके नाम पे घर खरीदा उसने? हाँ. तो बेवकूफ कौन हुआ? वो What? I think वो अब तो चुका लिया होगा, वो अभी बहुत पैसे कमा रहा है, पर वो काफी टाइम तक पोस्ट ब्रेकअप उसके EMIs चुका रहा था. और वो घर उसके नाम पे है और उसने ऑलरेडी क्योंकि इतना पैसा दे दिया था, he didn't want to stop. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बोलूं well done girl और वो उसके पास गया कि बोला कि यार मैंने तुम्हारे नाम पे किया था पर अब हम साथ में नहीं है तो एटलीस्ट हम उसको डिवाइड करके फिर अलग करते, मैं तुम्हें दूंगा अपना हिस्सा. She's like no, it's mine. That's what she did to him, which is why whenever I see that woman, she's a relatively famous person. Decent. And comes across as the most power person in this universe. Wow. And this is what people do then. So people become very evil when breakups happen. I've heard of a lot of stories where जब breakup के time पे ना उनका असली चेहरा समझ में आता है, क्योंकि वो जब वो ले नहीं पाते हैं ना, वो धक्का नहीं ले पाते हैं, तो मारपीट होती है, तोड़ताड़ होता है, तोड़ताड़ घर पे चीजें टूटती है. हाँ. और वो अग्रेशन तुम्हें पहले रिलेशनशिप में नहीं दिखता, बाद में दिखता है और फिर then you're like fuck thank God, but you feel like यार am I stuck with this person. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि I'll cut myself if you don't get back. That is too triggering, man. That is just. And then you feel like that is wrong, guys. What are you doing? What are you doing? I've never done that, I swear. What? I didn't say cut myself, but I said I think I'm not being able to take it. I can't breathe. I think I'm dying. ऐसे voice note भेजा था. जब तू ब्रेकअप कर रही थी या कोई तेरे साथ ब्रेकअप कर रहा था? मतलब उसी जन के साथ मैंने इवेंचुअली मैंने ब्रेकअप किया, पर बीच बीच में जब ब्रेकअप्स होते थे तो वो थक गया था और उसने बोला ब्रेकअप. कि मैं ब्रेकअप से थक गया हूँ इसलिए मैं तुझसे ब्रेकअप कर रहा हूँ. तो मैंने बोला तू मुझे छोड़ेगा, तू देख. और फिर मैं रोके उसके पीछे गई और दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही डिडंट लेट मी कम बैक टू हिम. सो I had become a mess. Yeah, I had lost at least 9 to 10 kgs, which was great for me because all my clothes were fitting. Guys, it's not great if you've lost weight post breakup. Please don't listen to. I don't think I would remember for days. I would not eat. हमारा जो podcast है ना, उससे कुछ भी सजेशन है कि कभी कुछ ट्राई मत करना.
बिकॉज मतलब हमारे पॉडकास्ट से प्रोडक्ट ट्राई करना लेकिन एडवाइस नहीं। आई थिंक मुझे याद ही नहीं होता था कि मैंने 3 दिन तक कुछ खाया ही नहीं है। मैं सुबह उठ के रोती थी, उसको मैसेज करती थी, वो रिप्लाई नहीं करता था, फिर मैं रोते रोते सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर उसका मैसेज के लिए वेट करती थी, वो नहीं करता था, फिर उसको गाली देती थी कि तू कैसे मुझे छोड़ सकता है, फिर वो रिप्लाई करता था प्लीज मैं बिजी हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। द सेम गाय हु टोल्ड मी कि आई स्टिल लव यू बट एज अ मदर, as a mother, like just like I love my mother, like I don't love you romantically. But tell me what is, this is insane, but what is the worst time to break up with someone? ऐसी कौन सी occasion है guys, ये बिल्कुल मत करना, worst time to break up? उनके बर्थडे पे बर्थडे पे पहले केक काटता था, अभी खुद का कट गया। आज मैं बर्थडे पे तुमसे केक नहीं कटवाऊंगी। गिफ्ट ब्रेकअप, डोंट डू दैट गाइस, वेट फॉर अ डे ना, 24 आवर्स में कुछ नहीं हो जाएगा। एंड जस्ट बिफोर अ ब्रेकअप आल्सो डोंट डू इट। फ्यूनरल्स, बट जस्ट बिफोर अ ब्रेकअप डोंट ब्रेक अप। just because before a birthday, just before a birthday also don't break up. No, but there are people who celebrate fucking birthday month. बर्थडे मंथ क्या होता है? पूरा मंथ अभी तुम्हारा बर्थडे। अरे यार तुम पूरे महीने पैदा नहीं हुए हो। अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ब्रेकअप कर रहा है, मैं बर्थडे ईयर कर लूंगी। ब्रेकअप ही नहीं कर सकता। मेरा बर्थडे है, अरे कल अभी अगले साल है। बट फ्यूनरल्स, आई मीन अगर उसका फ्यूनरल है तो इट डजंट अप्लाई। And I mean you have experienced twice exes, yeah. But मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई हॉस्पिटल में उनके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। या कि वो ऐसे ड्रिप पे ऐसे निकाल देगा वो। हाँ उस मोमेंट में। हाँ, पर अगर वो तुम्हारे को मार के हॉस्पिटल गया है क्योंकि उसके हाथ पे चोट लग गई है तुम्हें मारते मारते, तो प्लीज Poor thing. I'm so sorry boys कि तुम्हारे हाथ दर्द होते हैं। हम मार के। Do not, I think the good time to break up is जब तुम, good time या bad time, I don't know, fuck it, when you're just getting onto a flight, break up, phone off. ऑन भी नहीं कर सकते, बाद में करना भी है तो नहीं कर सकते। बाय देन तुम्हें भी क्लैरिटी आ जाती है, उसको भी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। प्रोसेस हो जाता है। What is another very good time to break up? A very good time to break up is as soon as you feel like he's your brother. Like as soon as you feel like he's feeling like ये तुम्हारा भाई जैसा बन गया है कि तुम्हें राखी पहनाने का मन कर रहा है। ब्रेकअप। I can't remember who was my friend जो किसी से टिंडर पे मिला and they sort of were dating only because उन्होंने बहुत बात कर ली थी टिंडर पे, and then we met and turned out they were like third cousins or something. Bads of Bollywood? Yeah. No, not the show, real life. Oh, okay. I can't remember who had told me this story. But this is very common in India, in anywhere in the world, why India, where दूर के जो cousins होते हैं उनको पता नहीं होता that they're related and they end up meeting each other for a date and all, then they realize they're related. वो बहुत sad होता है यार। That's really sad. Because if you hit it off with that person, because it runs in the blood. Don't break up with someone अगर वो अभी अभी फायर हुआ है तो। उसकी जॉब गई है यार, लड़की भी गई, जॉब भी गई, not a good time. ब्रेकअप जब उसका प्रमोशन हुआ है। Break up when he's drunk. है? तो उसको याद नहीं रहेगा ना कल। हाँ? उसकी प्रॉब्लम है ना। तुमने तो कर लिया था। उसकी प्रॉब्लम। तुमने तो कर लिया था ना, तुम्हारा हो गया। तुमने तो बोला था। हाँ। मैंने तो बोला था कल, तुझे याद नहीं तेरी प्रॉब्लम। वाओ डूड। Right time to also break up is when he's sleeping. तुमने तो बोल दिया ना। जब वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है ना, तब ब्रेकअप मत करो। आई डोंट, यू नो, मूवीज में देखा है तूने कि वो ही इज गॉन डाउन ऑन वन नी, देयर आर 24 पीपल वाचिंग, 24 व्हाटएवर, 24,000 व्हाटएवर, एंड द गर्ल सेज नो। अरे यार उस वक्त यस बोल देना, बाद में कर लियो ब्रेकअप। इट्स सो एम्बैरेसिंग फॉर दैट That's गाय। exactly how I had to say yes to that guy I broke up to on Facebook. Broke up with on Facebook. It was the most romantic proposal. मैं ना नहीं बोल पाई। पृथ्वी थिएटर में सबके सामने। क्या किया उसने? He went down on his knees. He gave me a little flower and he said, Aww. if I had to live my life with just one person, it would be you, or something like that. Something very cheesy. वाओ। And then I couldn't. How do I say no? Everybody's like, आई एम ग्लैड तूने मना नहीं किया यार। उस वक्त मना मत करो ना यार, भाई उसकी ईगो, ही इज गोना गेट एम्बैरेस्ड। घर जाके मना कर देना। तुम भी तो लोगों के सामने। किसका फोन बज रहा है? चल सिक्योरिटी गार्ड। दिस अराउंड दिस टाइम ही दिस इज टोल्ड मी। उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता ना, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड की याद में रहता है वो ये टाइम पे। गानों से याद आया, एक ब्रेकअप गाना गा लो यार मेरे लिए। कौन सा? गा लो यार।
What is that one song? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र Is this the song you've heard when you've gone through a breakup? जुबा पे सुआद रखना. No, I was married by then. I'm asking you to sing a song that you probably heard when you were going through. More romantic songs क्योंकि फिर याद आती थी. वो कौन से थे? तबल्ली मैं wallahi karaniti only hawa. This song you heard during a breakup? Because then you miss all the romantic moments. Oh, you were in Havas then. But every 20-year-old is in Havas only. There is I Havas was in only. love. You were in love. मैं प्यार में थी और वो कहाँ है वो आज? वो वाला प्यार ना बहुत innocent होता है. ये कैसा प्यार है? कहाँ है तुम्हारा? मैं पता है कौन सा गाना सुनती थी? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Tell me about your worst breakup. Have you gone through pain apart from like childbirth? I think I told you on the phone, but that was me doing the breakup. देखो मेरे केस में ना ज़्यादातर मैंने किया है breakup. मेरे साथ किसी ने वही ना breakup तुम किया नहीं है. privileged हो. मैं थोड़ी सी मेरा तो overlap भी हुआ है बहुत बार. तुम पे कभी cheat भी नहीं हुआ है, किसी ने cheat नहीं किया तुम पे. नहीं. I mean, तुम्हारे पे कोई cheat नहीं करेगा. मैं You're like this North Indian man. मैंने भी किसी पे cheat नहीं किया लेकिन. I'm scared of you. I would never cheat on you. But मेरा worst breakup होगा that because मैं एक लड़के का हाथ ही पकड़ रही थी और कुछ नहीं पकड़ रही थी तो उसने मुझे बोला that तुम कुछ नहीं पकड़ रही हो तो let's break up and he cut the phone on me. He literally wanted to tell me that you're not giving me any physical intimacy. It was illegal, okay? It was illegal. 18 से कम के थे हम. That's why you are not doing it, not because you didn't feel a thing for that person. No, I really liked him. I was shy. मेरा first था यार. मुझे नहीं करना था सीधा कुछ भी. मैं छोटी बच्ची थी यार. छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, थी मैं. I also feel कि during sex breakup मत करो कभी भी. While doing it. While you're at it, you can't break up with someone. That's just ridiculous, isn't it? Imagine that. Not the sex, the breakup. Don't go and imagine the sex. I mean, he'll just think of it as role play. Oh, you're playing hard to get, huh? How to deal with breakup, or how to not deal with the breakup. Chal, how to not deal with the breakup. What do you think about rebounds? I feel like I would not want to be somebody else's rebound. Do you want a rebound for yourself though? मैंने कोशिश की, but I realized मैं वो इंसान हुई नहीं. Clearly हम दोनों एक जैसे ही हैं. हमने कभी we've never been intimate with anybody that we've not dated for a while or have fallen in love with. It's not even कि मुझे ये पसंद है. We are demisexuals. जो डेमी लोवेटो को पसंद करते हैं. No, demisexuals are people who cannot have a sexual relationship with anyone who they're not emotionally connected with. Emotional connection है तो ही सेक्स हो सकता है वरना नहीं हो सकता. मेरे जो सारे दोस्त थे जो सिंगल थे हाँ. उनके बहुत ब्यूटीफुल फ्लावरी फ्लिंग्स हाँ. हुए हैं और उनके स्टोरीज आर लाइक oh I went to France and I was with this French guy, I went to Italy, I was with the Italian guy, I was Wow. in Pakistan, I was with, you know. No. So No. all that. Yeah. And I was like, wow, that's really nice. Like, I also want to experience this and I want to try. तो मैं dating app पे गई. हाँ. मैंने वहाँ पे, you know, it was, एक तो it's a lot of fun, just that activity. Whether you meet the person or not, the activity of just swiping हाँ. is so satisfying when you've just gotten out of a breakup because you're just like, fuck off. Also the likes you get back. Yeah. कि oh, you like me, but fuck off. I feel like breakup के बाद validation चाहिए होती है और जहाँ से भी मिले ले लो. हाँ. ठीक है, that's all you need because you're feeling low about yourself unless तुमने breakup किया. You're feeling low about yourself, you're feeling low about your, I don't know, looks or the person that you are, so just get validation. Dating apps are a great way to get validation. Yeah, and I did that and I was happy with that. Only after that when I met those people, I went there also, I met those people, I went on dates, but I couldn't do that final thing that I had decided I will do. Like that, I'm going to, we're going to walk, he's going to walk me home and we are going to kiss. Activity. The activity. The activity. I'm not talking about final activity. You're talking about first activity also. First activity. I couldn't do. I was just, I went in the, he said I'll drop you. I was like, ठीक है गाड़ी में तो किस करेगा ही. मैं इतना डर गई जैसे ही मैं front seat वो दरवाजा खोलने गई मैंने बोला I'm feeling so nauseous. I'm going to sit at the back. He has driven me home. I was in the back seat. Are you serious? And I pretended to be
whatever, and he just like a driver dropped me home, and I was like, fuck, I can't do this. I'm sorry, whoever you were. I apologize. And he was, what a car. I apologize. My mom saw that car, she's like, good data, how it went, beta? But I couldn't do that. Also, I feel like kuch rebounds don't end well, so it can end up making you feel bad the next day, worse than you were anyway feeling after the breakup. Because that guy will just look at you like, हाँ चल निकल, chill हो गया अभी, activity over, bye. But guys, if you all do have a fling, you all should buy her breakfast the next day or like get her coffee. Yeah. Like be nice to her and then let her say fuck off to you. हाँ. Don't be a dick. She won't say fuck off to you, but like just be nice to her and give her that कि हाँ, बाद में फिर I ब्लॉक agree. कर दो ना उसको. ब्लॉक चलेगा. कर दो बाद में. फिर वो तुम्हें रिप्लाई. अच्छा मेरे को बताओ, what are the things you can't do post breakup? ऐसी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए post breakup. 2 girls तुम्हें बताएंगी क्या नहीं करना चाहिए. बताओ सृष्टि. जब कोई तुम्हें ऐसा फील कराए ना कि when they put the onus of the breakup on you, मतलब वो तुम्हें आके बोलेंगे कि actually I don't love you anymore, लेकिन breakup भी नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, indirectly तुम्हारे ऊपर डाल दिया है कि अब तुम करो. They are ghosting you, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहे, थोड़े डिस्टेंट है, तुम्हें गलतियां निकाल रहे, बट वेट उनमें गट्स नहीं है, तो वो वेट कर रहे कि भाई तू ही कर. And then they'll come and then when you address it कि कुछ तो गड़बड़ है. हाँ. तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम ही दिख रहा है मेरे में. हाँ, ब्रेकअप करना है तो कर लो ना. ब्रेकअप करना तो कर लो ना. वो नहीं करना चाहते हैं. ऐसे बंदे या बंदी से बिल्कुल ब्रेकअप, क्योंकि उनको वो गिल्ट नहीं चाहिए. वेट. Don't you wait until he says it, you make sure he says it. Yeah. काफी लोग क्लोजर मांगते हैं रिलेशनशिप जब एंड होता है उनके, दे लाइक एक बार मिलके मुझे बस क्लोजर चाहिए, मुझे बस वो चैप्टर खत्म करना है, एक लास्ट हग नहीं होता. वो एक्चुअली होता है प्लीज मेरे को वापस ले लो, दैट्स सबटेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं होप है कि यार कुछ हो सकता है, और तुम्हारी जो वापस बैंड बजेगी ना, इतना भी जो तुमने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, इतना भी जो तुम जिम गए हो, इतना भी जो तुमने कुछ भी किया है, वो सब फेल होने वाला है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें क्लोजर मिलने वाला है. नहीं मिलने वाला है. कोई क्लोजर नहीं देगा अनलेस तुम 50-55 साल एक साथ हो. लाइक माय ग्रैंड पेरेंट्स टुडे इफ दे डिसाइड टू ब्रेक अप, सॉरी टुडे इफ दे डिसाइड टू ब्रेक अप, दे विल ब्रेक अप वेरी कॉर्डियली, बिकॉज इट विल बी लाइक हाँ हो गया हमारा. 80 साल बहुत अच्छे थे. अपने डेंचर्स पहनना मत भूलना और दवाइयाँ लेते रहना. 80 साल बहुत अच्छे थे, अभी 2 साल जो बचे जिंदगी के. मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? That is the only time you actually get closure. Otherwise, everybody is an asshole and you're just going to feel really bad. क्लोजर का वेट मत करो और ना ही मांगो. क्लोजर नहीं होता, उससे वापस मत मिलो. अच्छा ब्रेकअप हो गया अभी, ठीक है, अभी ऐसी कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? तुम्हें क्लोजर नहीं मांगना चाहिए. तुम्हें उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है. तुम्हें उसके कपड़े प्लीज नहीं पहनने चाहिए. तुम्हें उसकी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ. तुम्हें उसकी मम्मी को ना आंटी बोलना चाहिए, मम्मी नहीं, ठीक है. गई वो, अब आंटी है वो. हाँ अभी शी इज नॉट योर मम्मी जी. शी इज नॉट योर मम्मी जी, सो डोंट डू दैट. या तुम्हें उसके साथ कपल फोटोज नहीं डालनी चाहिए. हाँ क्योंकि तुम उसमें अच्छे लग रहे थे. वाओ इट वाज सच अ नाइस पिक्चर, सो आई पढ़ नो. और उसको क्रॉप करके भी डालने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि वो किसका हाथ है तुम्हारे वेस्ट पे. ठीक है. हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी नो, ही इज नॉट हैप्पी, यू ब्रोक अप विद हिम, सो स्टॉप विशिंग हिम हैप्पी दिवाली ब्रो. एंड इफ ही ब्रोक अप विद यू देन वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट? So you can't do either. Also, don't go on their weddings. You are not Ranbir Kapoor. This is not a movie. If you go to the wedding and that person is just going to feel, your ex is just going to feel कि तू free का खाना खाने आया है बस. और please unless तू free का खाना सच में खाने आया है. फिर जा. और चन्ना मेरिया मत गाना please, that's really yeah, it's very done. Yeah. उनका टैटू मत करा लेना नाम. ये कौन करता है यार? करते हैं. I know someone. हाँ याद में. सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्कआउट इज एक्चुअली, लोग वर्कआउट करके काफी सेल्फ रिस्पेक्ट पाते हैं. Yeah, that's true. But also because when you look good, people look at you and you start feeling good about yourself and you're like yeah. But you've heard of the concept of glow ups ना? Yeah. Post breakup. It's mostly that. Yeah. क्या होता है ग्लो अप में? Suddenly आपको रियलाइज होता है कि आप बड़े ही कंफर्टेबल हो गए थे और चीज़ केक खा रहे थे रोज, अभी नहीं खा सकते क्योंकि अभी आप सिंगल हो. Yeah. ठीक है, खा सकते हो, मतलब ना खाओ तो अच्छा है. एंड हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन देयर ग्लो अप्स? मतलब
लड़कों को सडनली पता नहीं क्या हो जाता है, उनको बॉडी बनानी होती है. इसलिए मैं कंफ्यूज्ड होती हूँ जब कोई मुझे पूछता है ना वर योर एक्स बॉयफ्रेंड्स गुड लुकिंग. आई डोंट नो व्हाट टू से बिकॉज व्हेन आई वाज विद देम नो. But after, just when you broke up. So are they or not? Because right now, Wow. no, not at all, Bhavish. My ex has gone to the gym and made 8-pack abs post breakup. Mine made 12 pack. What do you do? Beat that. Heart was broken even more. मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे घर के सामने जहाँ पे मैं रहती भी नहीं हूँ अभी, आफ्टर द ब्रेकअप 4-5 साल तक ऐसे देखता था मेरे विंडो पर. मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे देखता था मेरे विंडो. क्यों? He was hurt more, so he was उल्टा hanging. मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो उसके 4 आंखें थे, वो 4 आंखों से देखता था. मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की 5 आंखें थी एक सेंटर में. उससे वो देखता नहीं था. मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं. मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी. That's true. But tell me honestly, how did you deal with that? I know तुम्हें बहुत बाद में पता चला you were not in touch with your No, I was not in touch. I was not in touch. It was very What hard. did it feel like? Very strange. Yeah? It was a very strange feeling. Suddenly, I was like, suddenly your memories come back, and then I remember I went and I started looking for their pictures in my phone because I knew वो वहाँ पे है, and I saw all the pictures that we had together, kind of reliving that. मैंने वो देखी नहीं थी इतने सालों से, but somehow I just wanted to remember that person. तो मैं गई हूँ and मैंने सारी photos देखी. I made a separate folder. I still have that folder in my phone of his. His wife, if she's watching, that's fine. And of course I cried because it's just, चाहे कुछ भी कहो, he's a wonderful person and it was too early. It's just too early. Yeah. So yeah. रो देना, एक दो आंसू निकाल ही दे फिर. No, it's not. I'm not feeling like crying. I'm feeling like that's such a weird feeling because But I told you life is like my that, friend yaar. recently passed away. Yeah, and man. I have not been in touch with that person, but that feeling of having bad. known that person and now that person's no more, and young person, you don't know how to deal with that. Like, it's not like, oh, this person was close, I will cry. I will go through that grief. This is a weird kind of grief. But you know, the fuck up is both my breakups were bad. So the person who passed away, I had my last my breakup with him, after which we were never in touch, was not a good one. So that makes you feel. So breakup karo na, try and end it on a good note. But yeah, let's go back to glowing up. बट ये ग्लो अप का ये वर्किंग आउट क्या होता है यार? लोग वर्कआउट क्यों करना शुरू कर देते हैं एकदम से व्हेन दे ब्रेकअप? लाइक क्या व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव कि पोस्ट ब्रेकअप अग्रेशन है ये, या ये वो है कि ओ लुक व्हाट यू लॉस्ट आउट ऑन बिच, लुक एट मी? I think it's both. बिकॉज़ ही बिकेम वेरी हॉट आफ्टर आई ब्रोक अप विद हिम. I know that happens. आई वाज लाइक ये पहले कर लेता. अच्छा. शायद बट नो. सो पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप्स आर लाइक रियली. My post breakup glow up is when I'm sad, I obviously cry. I cry a lot, and when I cry, my skin starts glowing. Yeah, I've noticed this. I just start glowing, so then I cry more often. अरे पर ये क्या बात हो यार, ये सस्टेनेबल थोड़ी है. मतलब तू मूव ऑन करेगी तो रोना नहीं आएगा, तो तेरी स्किन गई फिर. Yeah, clearly. तो ये यूज करना. यूज इट. व्हाट इज इट? डेड स्किन रिमूव करता है. You use this? Yeah, just use यूथ का फेस का. After a breakup. Exactly. No wonder you are so hard inside and soft outside. Bitch. Yeah. When was the last time you cried? You don't need to I don't need to. because I use. so you just don't cry I don't cry. even if you feel like जरूरत ही नहीं है. मेरे ग्लो अप क्राइंग से नहीं आते, मेरे ग्लो अप इससे आते हैं. गाइस, पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप के लिए एवर यूथ फेस स्क्रब. It's actually good. Okay, I'm not but even joking. I've also seen people learning something new, like a You new should skill. Definitely और learn something new. उनको कोई बोलता नहीं, वो खुद ही अंदर से आता है कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरा बॉडी और मेरा ब्रेन, आई एम ब्यूटी विद ब्रेन्स दोनों. हाँ. ठीक है, तो अब मैं वर्कआउट के बाद घर जाके किताबें पढ़ूंगा. और कौन सी? लव स्टोरीज. लव स्टोरी, मेरा वोकैबुलरी रूमी. मैं बोलूंगा कंटैंकरस इतने कॉन्फिडेंस से. Cantankerous. What does it mean? I have no idea. I have no idea either. Guys, Word of the comments day. comments में बताओ cantankerous का मतलब क्या होता है? Because I have Word no of the idea. day, editor. Word of the day, cantankerous. हाँ, and please असली में मत बताने लगना. Wrong answers only. Yeah, cantankerous guys. Also like, share, subscribe. Subscribe. How do you say subscribe? Subscribe. Suck up. Subscribe.
Like, share, subscribe, Subscribe. and join our multiple organisms channel, which is on Instagram, please. Yeah. But the kind of music and art that has come out of a heartbreak, I want people to feel more heartbroken in life. What do you mean? Taylor Swift का पूरा career, हाँ. Bruno Mars का पूरा career. Breakup के बाद बना है. You're right. Not just them, I mean Arijit Singh, all his songs are breakup songs. Who's listening to it? People who have broken up. People who are sad inside. Like, sadness is underrated, bro. People need to be more sad because when you're sad ना, like मैं हर रोज नहाती हूँ. मैं हर रोज नहा रही थी. Breakup के बाद. हाँ, हर रोज नहा रही थी. Bhavesh, can you just break up with her like every day for 1 hour? So that you break up and she goes take a shower and then you can patch up because it's then easier for me मैंने to work with her. गिटारिंग सीख ली यार. गिटारिंग दोनों क्या हाथ होता है से. यार? गिटारिंग. गिटारिंग ही सीखी है तुमने. यही तो प्रॉब्लम है. मैंने गिटारिंग सीखी. मैंने कुकिंग सीखी. Oh, that was nice. तू अच्छा खाना बनाती है. मैंने कब सीखा? ब्रेकअप के बाद. कि उसको लगता है कि मैं उसके घर की बीवी नहीं बन सकती. अब मैं उसको दिखा. उसके घर की बीवी बनने के लिए तेरे को ऐसे कुकिंग करना था. शायद उसको लगा कि मैं घर ले जाने वाली लड़की नहीं हूँ. सही लगा. अच्छा क्यों? किया. क्योंकि मैं 2-3 चीजें चोरी कर लेती हूँ. उसमें क्या है? लॉकर खुला क्यों रखा यार तुमने? ले लूंगी यार मैं डायमंड्स. आई थिंक हार्ट ब्रेक का सबसे बड़ा Yeah. एडवांटेज है क्या? द आर्ट. लाइक यू टेक योर ब्रोकन आर्ट एंड यू टर्न इट इनटू आर्ट. Take your broken heart and turn it into art. Wow, dude. That's very poetic. Yeah. लोग शायरी लिखना शुरू हो जाते हैं यार ब्रेकअप के बाद. उफ, उफ नहीं, उफ ही होता है वो. उफ. क्या शायरियाँ होते हैं. 1-2 पढ़ ले क्या? What is that? खूबसूरत मुकाम पर छोड़ देना ही अच्छा. हाँ, correct. What is ब्रेकअप that? शायरी लिखना आ जाएगा अभी. Then read it like you've just written it. साहिर लुधियानवी. हाँ. नहीं लिखा है, मैंने लिखा है. हाँ. क्या है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है. क्या लिखा है? तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है. ओह, अच्छा है ना? एक और सुनाती हूँ. अबे यार. छोड़ो अब गम की बात करो, दिल पे जोर है तो रात करो. हाँ? That makes no sense. That makes no sense. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं. ये तो गाना है ना. तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं. अच्छा, मिर्जा गालिब की सुन लो. दिल ही तो है ना संगो किश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों. I think it's not the शायरी, it's the one who's saying the शायरी. रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ. तू मेरे पास वापस आ, मुझे मुझे पता है, I फिर से understand. छोड़ के जाने I के लिए understand it. आ. Please Okay ignore. guys, let's go. Two Let's girls play a game. Yeah, I'm going to give you some sentences and you're going to give me some Sentences तो मुझे नहीं सुनने हैं बिल्कुल भी. Sentences. देखो, जब कोई आपसे ब्रेकअप करते वक्त ये वाला सेंटेंस बोले, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है वो आज हम तुम्हें बताएंगे. तो अगर कोई तुमसे ब्रेकअप करते वक्त ये बोले ना, इट्स नॉट यू इट्स मी, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हारा दिल दुखाने की कोशिश नहीं करना चाहता, लेकिन इट्स यू आर. इट्स नॉट यू इट्स मी का मतलब है इट्स ऑलवेज यू. यस. तुम अगर किसी को कोई अगर तुम्हें बोले वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स, व्हाट डज इट मीन? चल टेल. आई थिंक इट जस्ट मीन्स कि मुझे तेरे साथ सेक्स नहीं करना अब, हाँ, बिकॉज मुझे और लोगों के साथ करना है. या दैट्स ट्रू एक्चुअली. या व्हाट अबाउट अगर वो तुझे बोले आई नीड स्पेस? ठीक है, तो थोड़ा दूर बैठ जाओ. ही इज बेसिकली सेइंग ही वांट्स टू ब्रेक अप, बट उसको वो वर्ड बोलने में शर्म आ रही है. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए हमारे बारे में सोचने के लिए. हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए. ये सिर्फ स्टॉलिंग का तरीका है. एक्चुअली उसने वक्त ले लिया तुम्हें बिना बताए और सोच लिया उसको क्या करना है, और अब वो तुम्हें सोचने के बाद तुम्हें वक्त दे रहा है ये प्रोसेस करने के लिए कि एक्चुअली वक्त खत्म हो चुका है. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बाहर तुम music- रहे ना तुम, हम रहे ना. हम. अगर वो तुम्हें बोले कि मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं हो, पेरेंट्स पेरेंट्स
अगर वो ऐसा बोले तो मैं बस उस शब्द की वजह से ही ब्रेकअप कर लूंगी. पर अगर वो पेरेंट्स बोले, पेरेंट्स जो बोलते हैं ना, माय पेरेंट्स, आई एम लाइक, दोनों तुम्हारे पेरेंट्स तोते हैं? पेरेंट्स प्लीज. सबको इंग्लिश नहीं आती है. I'm just imagining two parrots giving birth, one parrot giving birth to him, a human being. मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ. आफ्टर डूइंग रिलेशनशिप इस वक्त मैं रेडी नहीं हूँ. मैं रिलेशनशिप के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, इतना रेडी हूँ कि अभी जैसी तुम यहाँ से निकलोगी मैं रेडी होके दूसरी के पास जाने वाला हूँ. आई एम सो रेडी. अगर कोई बोले मुझे अपने करियर पे फोकस करना है तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि कल से तुम्हें मैं गोस्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा. तो ही इज इनडायरेक्टली इन्फॉर्मिंग यू कि गोस्टिंग इज गोइंग टू हैपन. कल मैसेज करोगी, रिप्लाई नहीं आएगा. व्हेन समबडी सेइंग मैं करियर पे फोकस करने वाला हूँ, यू आर गोइंग टू गेट गोस्टेड बडी. दैट्स व्हाट ही रियली मीन्स. और मैंने ऐसा क्या कर लिया यार कि तुम करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो? और तुम ऐसा क्या कर रहे हो अपने करियर में? कैसा करियर है ये? So first tell me what you are doing in your career. If you are making YouTube videos, fuck off. ओके. या इफ यू आर यूट्यूबर, कौन सा करियर? क्या करियर? क्या करियर? कहाँ है वो करियर? है कहाँ? फैन फेस्ट में नहीं बुलाया अब तक यूट्यूब ने हमें. आएगा ब्रो नेक्स्ट फैन फेस्ट. हम थे भी नहीं, वी वर इन थाईलैंड एक्चुअली. मुझे एक कॉल आया था फैन फेस्ट का, मैन फेस्ट से. आपकी बहुत जरूरत है यहाँ. एज अ मैन और एज अ वुमन फॉर द मैन. सही है ना? As a man. Okay, that was a great segment. Yeah. And guys, I know हमने बहुत मस्ती मजाक की, और अब अगर आप इस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहे हो, I'm really sorry. Trust me, it's going to get worse. Before it gets better, it'll get better. Okay. और Bye. keep scrubbing. Keep scrubbing. Yes, keep scrubbing. Keep scrubbing. Two girls and two guys. Two girls and two cups. Tune in Monday to Friday, sometimes Sunday, and sometimes never. Keep listening. Bye. Ciao. Sayonara. Alvida. Arre.